जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Today we are going to start our lesson number 1 and volume number 1, which is called English grammar. First of all, I would like to tell you and I would like to share something here about the education. You people very well know that what is the importance of education, but here I will add something about the education. Education is the process of facilitating learning or the acquisition of knowledge, skills, values, beliefs and habits. Educational methods include training, teaching, storytelling, discussion and directed the research. We can also say that education is the passport to the future for tomorrow, which belongs to those who prepare for it today. Welcome to the series of the lesson. In this first lesson, I'm going to give you a quick introduction about English grammar, that what is English grammar. In the following lesson, we learn more about detail in the English grammar. It is also like a job title. The person who may be a teacher, doctor or a nurse, a word that depends upon the job title in a sentences. It is a very useful in learning. When you study in grammar, you will come across the terms like these. You will also come across the terms as noun, verbs, adjectives and the verbs or the adverbs. If you know what I mean to say, they can help you study in the grammar. Okay, come to the point that what is the English grammar. You people very well know that what is English grammar. English grammar जो है वो हम बचपन से ही सीखते आ रहे हैं और इसको जितना ज़्यादा हम सीखेंगे उतनी ही हमारे अंदर लर्निंग स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा आएंगी. First of all, I just want to say that here I have put it something in the middle of the line, the some words which is called the fun to learn. So if we have a trick, if we have a very good trick to fun or to fun with the letters and to fun with the alphabets, so we can easily speak, we can easily conversate with the others, we can easily conversate with our fellows and we can easily conversate with our boss, with our principal, everything we can easily say and we can easily speak and we can easily learn anything else you can say. So first of all, आज जो है हम volume number 1 की बात करेंगे. So come to the point that which one is the first thing which is related to the English grammar. सबसे पहले हम बात करते हैं जी noun की, that what is noun. नाउन एक बेसिक थिंग है, एक बेसिक चीज़ है जो कि हमें बताती है कि इंग्लिश ग्रामर का आगाज़ जो है वो कहाँ से हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई जस्ट वांना शेयर हियर दैट द डेफिनेशन ऑफ नाउन. Noun always shows or always refers to the name of any person or animal, thing or a place. नाउन किसी भी शख्स को शो करता है, किसी भी एनिमल को शो करता है, किसी भी चीज़ को शो करता है या किसी भी प्लेस को शो करता है. आई हैव पुट इट समथिंग हियर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल. आई लव चॉकलेट्स. यहाँ पे चॉकलेट्स जो है वो नाउन को शो कर रहा है विच इज़ रिलेटेड टू द थिंग. कराची इज़ अ बिग सिटी. कराची, एज आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट इज़ द नाउन. नाउन जो है वो प्लेस को भी शो करता है. सो यू पीपल वेरी वेल नो दैट व्हाट इज़ कराची. कराची इज़ अ बिग सिटी. कराची इज़ कॉल्ड एज अ नाउन एंड यू पीपल वेरी वेल नो दैट कराची इज़ अ वेरी फेमस सिटी एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिग सिटी इन आवर कंट्री. सो आई होप सो कि आपको जो है वो नाउन की समझ आ गई होगी. आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर समथिंग हेयर एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू एड समथिंग हेयर अबाउट द नाउन. नाउन ऑल्सो शोज एन आइडिया और द फीलिंग्स. जब हम फीलिंग्स की बात करते हैं लाइक इमोशंस विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ द एंग्री और लव. जैसे हम कहते हैं जी शी लव्स मी, वो मुझसे प्यार करती है, और शी इज़ एंग्री विद मी, वो मुझसे नाराज़ है. तो ये भी सारी की सारी चीज़ें जो है वो प्रेजेंट करती हैं नाउन को. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी टाइप्स की तरफ. दैट हियर आर 2 टाइप्स ऑफ द नाउन. The first one type is the common noun and the second type is the proper noun. First of all, I just would like to share and we will discuss, we will go more in detail about common noun, that what is a common noun. Common noun की जो definition है वो है जी it refers to common person, प्लेस और अ थिंग. कोई भी ऐसी जगह या कोई भी ऐसा शख्स या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कॉमन नाउन को शो करती है, आम चीज़ को शो करती है, वो कॉमन नाउन के साथ उसका रिलेशन जो है वो बन जाता है. लाइक द वर्ड्स डॉग, स्कूल एंड ट्री. हम किसी भी क्या उसका नाम आम चीज़ जैसे कि दरख्त की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, एक एनिमल की बात करते हैं, आया कि वो डॉग है, वो कैट है, वो काऊ है, एटसेट्रा, एनीथिंग एल्स. ऑल दीज आर नोन एज कॉमन नाउन्स. ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कॉमन नाउन से जो है वो रिलेटेड हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई जस्ट वुड like to share here which is the one example. Children love sweets. बच्चे जो हैं
स्वीट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हेयर वी हैव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द नाउन। पहली वाली जो एग्जाम्पल है वो बच्चे हैं जो कि एक कॉमन नाउन को शो कर रहे हैं, और दूसरा वाला जो है वर्ड यहाँ पे स्वीट्स का है, मिठाइयों का है, जो कि कॉमन नाउन के साथ इसका भी ताल्लुक है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो कॉमन नाउन को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट वन बात करते हैं हम लोग आगे वाली एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हम बात करते हैं जी आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ या फिर मैं स्कूल जा रही हूँ। किसी भी सेंटेंस के अंदर हम लोग ढेर सारे कॉमन नाउन्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। So here we have just one word of the common noun. So वो common noun कौन सा है जी? स्कूल है। स्कूल जो है वो common noun को शो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं जी प्रॉपर नाउन की तरफ। प्रॉपर जो है आप जो है वो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि प्रॉपर जो है वो किसको बोलते हैं, एक ख़ास जो है एक खासियत जो चीज़ रखती हो। और जहाँ तक नाउन की बात है, जब हम प्रॉपर नाउन की तरफ आते हैं, सो प्रॉपर नाउन ऑलवेज शोज द प्रॉपर पर्सन, प्लेस, थिंग एटसेट्रा। किसी भी प्लेस को, किसी भी जगह को, किसी भी जो प्रॉपर थिंग है उसको शो करना प्रॉपर नाउन से रिलेटेड है। आई हैव पुट इट समथिंग हेयर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ नोट। यहाँ पे मैंने जो है एक नोट जो है वो लिखा है, उसमें वो आपको क्या बता रहा है, दैट इट ऑलवेज बिगेन्स विद कैपिटल लेटर। इसको हमेशा हम शो करते हैं कैपिटल लेटर के साथ। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है अली। अली एक खासियत रखता है एक नाम की, और इसका पहले वाला जो अल्फ़ाबेट है, पहले वाला जो लेटर है वो ए है। नेक्स्ट वन इज़ दैट लाहौर। You very well know that what is Lahore. Lahore एक जगह का नाम है, and we have just one place and one city of the Lahore in our country. So next one is that December. दिसंबर की जगह किसी और ईयर का जो है वो भी नाम आ सकता था, लाइक जून, जुलाई, अगस्त एटसेट्रा। लेकिन उनका हमेशा पहले वाला जो लेटर है वो कैपिटल में आएगा, जो कि प्रॉपर नाउन की खासियत का हामिल है या प्रॉपर नाउन को वो शो करता है जी। चलते हैं जी हमारी अगली एग्जाम्पल की तरफ। विच वन इज द फर्स्ट एग्जाम्पल? द फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट अली लाइक्स टॉयज। अली जो है पसंद करता है। ये प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है, जिसमें इस टेंस में हम लोग ढूंढ रहे हैं जी प्रॉपर नाउन को। सो फर्स्ट वाला जो है अली, नाम जो है एक प्रॉपर पर्सन का जो शो कर रहा है कि वो टॉयज को पसंद करता है, और इसका पहले वाला जो अल्फ़ाबेट है उसको मैंने शो किया है कैपिटल लेटर के साथ। The other one example is that I already told you that Lahore is one of the most important city and one of the most beautiful city in our country. Lahore is a beautiful city. So city जो है वो कौन सा है? लाहौर है। और लाहौर एक प्लेस का नाम है, एक प्रॉपर प्लेस का नाम है, जिसके फर्स्ट वाले लेटर को मैंने कैपिटल के साथ, कैपिटल अल्फ़ाबेट के साथ शो किया है। अगली तरफ बढ़ते हैं जी हम लोग कलेक्टिव नाउन की तरफ। I just would like to share something and I just would like to add something here. आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बताती चलूँ कि हम तो कहते हैं जी हमने इस चीज़ को सीखना है और हमारे अंदर ये डेवलपमेंट होनी चाहिए, हम इस स्किल के जो है वो हामिल बनना चाहते हैं। सो जब तक हम लोग उसकी डीप में नहीं जाएंगे, उसकी गहराई में हम लोग नहीं जाते, तब तक हम उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। हमारे अंदर एक एंथोसिज्म होता है, एक जज्बा होता है किसी चीज़ को जब सीखने का। सो वी कैन ईजीली फाइंड आउट एनीथिंग बिकॉज नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। कोई भी चीज़ इस दुनिया में मुमकिन नहीं है। सो कम टू द पॉइंट दैट व्हाट आई एम सेइंग अबाउट द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव जो है ये कलेक्शन से निकला है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल शुड बी कॉन्सेंट्रेट ऑन द हेडर ऑफ द फोल्डर। आप किसी भी टाइटल की बात करते हैं, आप कोई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले आप उसका टाइटल देखें कि इसका टाइटल क्या कह रहा है। जब तक आपको टाइटल की समझ नहीं आएगी तब तक आपको उसकी एक्सप्लेनेशन की भी समझ नहीं आएगी। सो कम टू द पॉइंट, कलेक्टिव नाउन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको मैं रट्टा लगवाऊं, कि आप रट्टेबाजी के साथ पढ़ें। आई हैव पुट इट हियर समथिंग अबाउट द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में जो है वो बात करता है जी इट रेफर्स टू द नेम गिवन टू द ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पे जो है कलेक्शन की बात कर रहा है कि ग्रुप ऑफ द पीपल जो है वो कौन से हैं और एनिमल कौन से हैं और थिंग्स जो हैं वो भी कलेक्शन फॉर्म में जो है वो आ सकती हैं। अच्छा जी, उसके बाद वो बात करता है जी इसके एग्जाम्पल की तरफ, दैट व्हाट इज़ द एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग हियर। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर जो है वो कलेक्शन शो कर रहे हैं जो कि एक आर्मी में मौजूद है, और अ फ्लॉक ऑफ शीप। द फर्स्ट वन एग्जाम्पल इज दैट द क्राउड वाज शाउटिंग। क्राउड जो है विच इज़ ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ मैस ऑफ पीपल, कि वो जो लोग हैं हजूम में है, वाज शाउटिंग, वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। एंड आई हैव अ बंच ऑफ फ्लावर्स, मेरे पास जो है क्लस्टर्स हैं, फ्लावर्स के बहुत सारे गुच्छे हैं या बुकेज हैं। सो हेयर वी हैव फाइंड द टू words which is in the form of collective noun which is called crowd and bunch. crowd और bunch के तौर पर हमने collective noun को जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी possessive noun की।
पोजेसिव नाउन को जो है वो एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ दैट व्हाट इज पोजेशन. पोजेशन इज एन ऑनरशिप ऑफ अ पर्सन विच इज़ रिलेटेड टू अ थिंग. पोजेशन जो है हमेशा हमारी मलकियत को शो करती है. जैसे कि पोजेशन में हम लोग बहुत सारे टेंसेस बना सकते हैं, या हम लोग आगे जो है वॉल्यूम्स में जाके मैं आपको बहुत सारे टेंसेस के बारे में बताऊंगी. सो कम टू द पॉइंट, पोजेसिव नाउन किसको बोलते हैं? विच रेफर्स टू द रिलेशन ऑफ अ थिंग. किसी भी चीज़ का जो रिलेशन है टू द पर्सन, किसी एक शख्स के साथ या किसी दो शख्स के साथ या कई इश्खास के साथ. जैसे कि हम अपनी बात करते हैं, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, मैं एक पेन रखता हूँ, या फिर मैं एक पेन रखती हूँ, तो वो मेरी मलकियत है. लेकिन जब हम लोग नाउन की बात करते हैं तो वो हम लोग इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं पोजेसिव नाउन के तौर पर. I also have put it something here which is in the form of note. Which one note is that? It is made by addition of apostrophe s. यहाँ पे कुछ ग्रामर के रूल्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि आपने यहाँ पे पंचुएशन को फॉलो करना है, यहाँ पे आपने ये वाले रूल को फॉलो करना है. तो उन तमाम के तमाम रूल्स को मद्देनजर रखते हुए पोजेसिव नाउन में एपोस्ट्रोफ एस का जो है वो इस्तेमाल होता है. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट. जब आप इसके एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी कि पोजेसिव नाउन कहते किसको हैं. दिस इज रोम्स अम्ब्रेला. रोम जो है वो एक अंग्रेजी नाम है, एक इंग्लिश नेम है एक लड़के का जो कि एक अम्ब्रेला रखता है. लेकिन यहाँ पे मैंने जस्ट हैज़ टू बी का मैंने टेंस जो है वो इस्तेमाल किया है. दिस इज़ रोम्स अम्ब्रेला. ये अम्ब्रेला जो है ये छतरी जो है वो किसकी है? रोम्स की है. तो अम्ब्रेला किसकी मलकियत शो कर रही है? रोम्स की. नेक्स्ट वन इज़ दैट टुडे इज़ मायास बर्थडे पार्टी. आज जो है माया की बर्थडे पार्टी है. सो बर्थडे पार्टी जो है वो किसकी मलकियत है? माया की. तो माया के साथ मैंने जो है एपोस्ट्रोफ एस का जो है वो एडिशन कर दिया है. सो इट इज़ नोन एज पोजेसिव नाउन. हियर वी हैव द पोजेशन ऑफ रोम्स एंड माया. और रोम्स के साथ हमने पोजेशन किसकी शो की है? इसके पास पोजेशन है जी, या फिर ये पोजेसिव नाउन जो है वो अम्ब्रेला है. नेक्स्ट वन इज है बर्थडे पार्टी. जी आगे बढ़ते हैं हम लोग. The next type of the noun is called genders of noun. Here we have 4 types of the genders, which is in the form of masculine gender, feminine gender, common gender and neutral gender. इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ that the first 3 types of the gender of noun are very important of the noun, and the 4th one is a very common. So first of all I just would like to explain here about the masculine gender. masculine से आपको समझ आ गई होगी ये किससे रिलेशन रखता है? नर से. जी masculine gender of noun refers to the male living things. ये हमेशा जो है male living things को शो करता है, like father, son, uncle, lion, etc. मैंने आपको अभी भी बताया है कि male living things आया कि वो पर्सन हो सकता है या फिर कोई भी एनिमल हो सकता है. जैसे कि हम बात करते हैं, हम पहले वाले इसकी एग्जांपल लेते हैं. ही इज़ माई फादर. ही इज़ माई फादर. वो मेरा जो है क्या है? एक मेरा बाप है या वो मेरे वालिद हैं. तो यहाँ पे फादर जो है वो मस्कुलिन जेंडर ऑफ नाउन को जो है वो शो कर रहा है. नेक्स्ट वन इज़ दैट यू आर माई सन. तुम मेरे बेटे हो. सन जो है वो भी मस्कुलिन जेंडर को शो कर रहा है. सो इट इज़ वेरी इजी टू लर्न अबाउट द मस्कुलिन जेंडर ऑफ नाउन. नेक्स्ट हम बात करते हैं जी फेमिनिन जेंडर ऑफ नाउन की बात करते हैं. फेमिनिन जेंडर ऑफ नाउन ऑलवेज शोज टू द फीमेल लिविंग थिंग. ये फीमेल लिविंग थिंग को जो है वो शो करता है, या फिर किसी भी एनिमल जो है वो फीमेल फॉर्म में है तो उसको भी ये शो करता है. जैसे कि मैंने आपको मस्कुलिन जेंडर ऑफ नाउन में लाइन की बात की थी, तो हम यहाँ पे लाइनस की बात करेंगे. और इसके अलावा मदर, डॉटर, आंट एटसेट्रा. सो फर्स्ट वन एग्जांपल इज दैट शी इज़ माई मदर. वो मेरी माँ है, ठीक है. और यू आर माई डॉटर, तुम मेरी बेटी हो. हेयर वी हैव गोइंग टू वी हैव डन द 2 feminine gender of noun which is in the form of mother and daughter. नेक्स्ट हम बात करते हैं जी कॉमन जेंडर की बात करते हैं. दैट व्हाट इज़ द कॉमन जेंडर? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न और टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर हम किसी भी सेंटेंस के अंदर जब देखते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि ये कौन सा जेंडर है. ये मस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, कॉमन जेंडर है या न्यूट्रल जेंडर है. यहाँ पे हम न्यूट्रल जेंडर की बात करते हैं. इट ऑलवेज शोज टू द वर्ड आइदर बी अ फीमेल और अ मेल. ये या तो मेल को शो करता है या फिर फीमेल को शो करता है. इसमें कोई कबाहत नहीं है कि ये किसको शो कर रहा है. लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि ये एक जो है एक मिक्सचर सा जो बनता है उसको ये शो करता है. लाइक हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स की, कज़न्स की और सर्वेंट की. हम स्टूडेंट्स में, तालिब इल्मों में देखते हैं आया कि वो गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं. कज़न्स हैं तो उसमें आया कि वो मेल है या फीमेल है. सर्वेंट्स हैं तो आया कि वो मेल है या फीमेल है. बढ़ते हैं हम लोग अपनी एग्जाम्पल की तरफ. दैट विच वन इज़ द फर्स्ट
एग्जाम्पल ऑफ द कॉमन नाउन ऑफ जेंडर। कहता है जी वी आर ऑल गुड स्टूडेंट, हम तमाम के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे हैं। दे आर माई कजन्स, वी मेट विद अ वेरी गुड सर्वेंट। हेयर वी हैव रिप्रेजेंटेशन about the students, cousin and the servant which is related to the common gender of noun. Next one is that countable nouns. When we talk about the countable nouns, you people very well know about the header and the folder. इस फोल्डर में जो आपको हेडर है वहाँ से आपको समझ आ गई होगी कि काउंटेबल जो है ऐसी चीज़ जो कि गिनी जा सके उसको हम नाउन्स के साथ उसका जो है वो ताल्लुक बना देते हैं या उसको शो करते हैं। बढ़ते हैं इसकी जी डेफिनेशन की तरफ। दैट विच वन इज द डेफिनेशन ऑफ द काउंटेबल नाउन? द वर्ड दैट कैन बी काउंटेबल, ऐसे अल्फाज ऐसा लफ्ज़ जो कि काउंटेबल हो किसकी फॉर्म में, या कि वो चीज़ें हों या भी कोई भी चीज़ हो, इसको हम काउंटेबल के तौर पर हम बनाएंगे। सो फर्स्ट वन एग्जांपल दैट अली हैज़ 2 बैग्स। यहाँ पे जो 2 बैग्स हैं वो शो कर रहे हैं कि ये काउंट हो सकते हैं। शी हैज़ 3 पेन्स, 3 पेन्स जो हैं वो शो कर रहे हैं कि ये काउंटेबल नाउन्स है। और यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे कि क्लासरूम जो है और पेन्स जो हैं और ये बैग्स जो हैं ये क्या उसका नाम है, एक इनकी एक क्वांटिटी है, एक इनकी मिकदार है और ये उस फॉर्म में पाए जा रहे हैं जैसे हम कहते हैं जी देयर आर 5 चेयर्स इन द क्लासरूम। क्लासरूम में 5 चेयर्स हैं जिनको हम गिन सकते हैं कि इतनी चेयर्स हमारे क्लासरूम में पड़ी हुई हैं। नेक्स्ट वन इज़ दैट अनकाउंटेबल नाउन्स, ऐसे नाउन्स जो कि काउंट होने के काबिल नहीं होते या फिर हम जिनको बहुत इजीली काउंट नहीं कर सकते उनको अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। इसमें हम बात करते हैं जी इसकी डेफिनेशन के बारे में। दैट वर्ड दैट कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसे अल्फाज या फिर ऐसा लफ्ज़ जो कि काउंट ना किया जा सके, जो कि इस काबिल नहीं होता, उसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। द फर्स्ट वन एग्जाम्पल इज दैट आई लाइक टू टेक टी, मैं जो है वो पसंद करता हूँ टी को, या फिर मैं पसंद करती हूँ टी को। यहाँ पे टी जो है, चाय जो है, उसको हम लोग गिन नहीं सकते। चिल्ड्रन ड्रिंक मिल्क, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जी चिल्ड्रन की। बच्चे जो है वो दूध पसंद करते हैं, लेकिन दूध को हम कभी भी या फिर मिल्क जो है उसको कभी भी काउंट नहीं कर सकते। इट इज़ ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन्स। द थर्ड एग्जाम्पल इज दैट शी टेक्स जूसेस डेली, वो डेली बेस पे जो है वो जूस लेती है। सो जूसेस कांट काउंटेबल, जूसेस जो है वो कभी भी काउंट नहीं हो सकते और इसको हम बोलते हैं जी अनकाउंटेबल नाउन्स। जी द नेक्स्ट वन इज दैट सिंगुलर एंड द प्लूरल नाउन्स। दैट व्हाट आर द सिंगुलर एंड द प्लूरल नाउन्स? द वर्ड्स दैट रेफर टू वन पर्सन, थिंग और अ प्लेस, ऐसे अल्फाज जो कि एक पर्सन, किसी एक चीज़ को या फिर किसी एक जगह को जब ये शो करते हैं तो हम इनको क्या कहते हैं, सिंगुलर या फिर प्लूरल नाउन कहते हैं। सबसे पहले हम लोग सिंगुलर पर्सन की जो है वो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। किसी एक चीज़ को, किसी एक जगह को, किसी एक पर्सन को शो करना सिंगुलर नाउन कहलाता है। द फर्स्ट वन एग्जाम्पल इज दैट अ बॉय, एक लड़का, अ बैग, एक बैग, अ लीफ, एक पत्ता, अ लॉइन, एक शेर। जब हम प्लूरल नाउन्स की बात करते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सिंगुलर प्लूरल किनको कहते हैं, जिसमें एस या एस का इजाफा होता है, जिसमें वी ई एस का इजाफा होता है, जिसमें आई ई एस का इजाफा होता है, उसको प्लूरल के फॉर्म में ले आते हैं। जबकि नाउन सिंगुलर नाउन जो है वो और चीज़ होते हैं। So the next one example is that, and next one the definition is that the word that are made by addition of s, e, s, v, e, s, i, e, s called the plural nouns। ऐसे नाउन जिसमें हम इन चीज़ों का एडिशन करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक उठता है कि हम लोग एस किसके साथ यूज़ कर रहे हैं, ई एस किसके साथ यूज़ कर रहे हैं, वी ई एस किसके साथ यूज़ कर रहे हैं, या आई ई एस किसके साथ हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं, ये सारी की सारी कंडीशनल टर्म्स हैं। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वॉल्यूम, ठीक है। जब मैं आपको नेक्स्ट वॉल्यूम की तरफ जाऊँगी तब मैं आपको इसकी पूरी की पूरी डिटेल दूँगी। It is called plural noun. The first one example has been completed in the form of the singular noun. The next one example is that the boys, leaves and pens. जी नेक्स्ट वन हम बात करते हैं जी कंपाउंड नाउन्स। दैट व्हाट आर द कंपाउंड नाउन्स? व्हेन टू और मोर वर्ड्स, व्हेन टू और मोर वर्ड्स, जब दो या दो से ज़्यादा हरूफ आपस में मिल जाते हैं, दे विल बी फाउंड इन अ न्यू फॉर्म, तो वो एक नई वाली जो फॉर्म है उसमें पाए जाते हैं। हेयर वी हैव अ डेफिनेशन दैट द न्यू वर्ड फॉर्म्ड बाय अ कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स। डेफिनेशन में वो आपको बता रहा है कि जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज आपस में मिल जाते हैं तो वो कंपाउंड नाउन बनाते हैं। हेयर वी हैव 2 एग्जाम्पल्स। We have many more examples, but I have put it just 2 examples here for your learning and for your skill and for your development. Example में वो बात करता है जी क्लास प्लस रूम।
क्लास को मैंने रूम के साथ क्या कर दिया है, इमर्ज कर दिया है। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये एक लफ्ज़ बनाते हैं जो कि एक नई शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसको हम क्लासरूम कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ दैट आइस प्लस क्रीम इज़ कॉल्ड आइसक्रीम। ये मुझे कंपाउंड नाउन को शो कर रहा है जी। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं जी प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन किसको कहते हैं? सबसे पहले हम लोग इसके नोट के बारे में बढ़ते हैं कि इसका नोट जो है वो क्या लिखा हुआ है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ग्रामर। ये बहुत ही अहम हिस्सा है किसका? ग्रामर का। दैट व्हाट इज़ प्रोनाउन एंड हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ मच इट हैज़ इम्पॉर्टेंस इन द रूल्स ऑफ ग्रामर। डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन जो है एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि नाउन की जगह पे जो है वो इस्तेमाल होता है। वी कैन से दैट इट टेक्स प्लेस द प्रोनाउन, इट टेक्स प्लेस द नाउन। ये नाउन की जो है वो जगह ले लेता है। द फर्स्ट वन एग्जाम्पल इज दैट अली इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट अली इज एब्सेंट। अली जो है वो नाउन को शो कर रहा है। अब इसको रिप्लेस किसने करना है? अब इसकी रिप्लेसमेंट किस जगह पे आ जानी है? इसकी रिप्लेसमेंट करेगा प्रोनाउन। हम बात करते हैं जी प्रोनाउन की। तो सबसे पहले नाउन जो है वो अली है, वो आज गैर हाजिर है बिकॉज, क्योंकि ही इज़ इल। तो इसने प्रोनाउन की जगह जो है नाउन की जगह जो है प्रोनाउन ने ले ली है। तो हम अली को जो है वो ही के साथ शो करेंगे बिकॉज ही जो है वो हमेशा मेल जेंडर ऑफ नाउन को शो करता है। आगे बात करते हैं जी दिस इज़ अ हाउस। ये एक घर है विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब हाउस जो है एक नाउन है। हाउस क्या है? एक नाउन है। एक क्या उसका नाम है, उसको कहते हैं एक प्लेस को शो कर रहा है, एक बहुत अच्छी चीज़ को शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसके प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं तो ये शक्ल इख्तियार कर लेता है इट की। सो इट इज़ फॉलिंग डाउन। I again repeated that what is pronoun? Pronoun is a very very important part of the grammar which is found in the rules of grammar. It can takes place in the form of pronoun and it can replace the noun और ये बहुत आसानी से noun की जो है वो जगह ले लेता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी पर्सनल प्रोनाउंस की। दैट व्हाट इज़ द पर्सनल प्रोनाउंस? जब हम किसी पर्सनल चीज़ की बात करते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पर्सनल चीज़ कौन सी होती है जो कि हमारी अपनी होती है। लेकिन जब हम नाउन्स और प्रोनाउंस की बात करते हैं तो इसकी कंडीशंस और इसके कुछ टर्म्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। इट ऑलवेज शोज एंड इट ऑलवेज रेफर्स टू सम स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, ये कुछ ऐसी खासियत जो है जो कि पर्सनस के अंदर होती हैं, जो प्लेस के अंदर होती हैं या फिर कुछ चीज़ों के अंदर होती हैं, उनको ये क्या करता है? शो करता है। सबसे पहले हम लोग इसकी फर्स्ट वाली टाइप देखते हैं। दैट विच वन इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन की जो फर्स्ट टाइप है वो कौन सी है? फर्स्ट पर्सन। जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? आई एंड वी। आई जो है वो प्रेजेंट करता है जी फर्स्ट पर्सन को एंड वी भी जो है वो भी प्रेजेंट करता है फर्स्ट पर्सन को। नेक्स्ट वन इज़ एग्जांपल ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की जो है वो कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैं कहती हूँ आई सा एन एलिफेंट, मैंने एक एलिफेंट को देखा। नेक्स्ट वन एग्जांपल इज़ दैट विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में एक और मैं जैसे कहती हूँ कि दैट आई हैव डन माई वर्क, मैंने जो अपना काम कर लिया है, तो मैं एक क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन है। उसके बाद बात करते हैं जी सेकंड पर्सन की। दैट विच वन इज द सेकंड पर्सन? सेकंड पर्सन ऑलवेज शोज द पर्सन स्पोकन टू। सेकंड पर्सन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग क्या कर सकते, जिसमें हम लोग ये शो करते हैं कि हम किसी से बात करते हैं। लाइक वो कोई भी हो सकता है। सेकंड पर्सन जो है वो शो करता है यू को, कि मैं यू को शो कर रहा हूँ। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं। डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेंसिल? क्या आपके पास एक एक्स्ट्रा पेंसिल मौजूद है? हम ये बात करते हैं सेकंड पर्सन से। और जब हम थर्ड पर्सन की तरफ आते हैं, विच रेफर्स टू द पर्सन और अ थिंग, जो कि रेफर कर रहा है, जो कि शो कर रहा है किसी भी पर्सन को, किसी भी चीज़ को, आया कि वो लोग हैं या फिर कोई चीज़ है। स्पोकन अबाउट, किसी चीज़ के बारे में या किसी शख्स के बारे में, किसी ऐसे हम लोग इंसिडेंट के बारे में जब बात करते हैं तो उसको हम थर्ड पर्सन के तौर पर लेते हैं। लाइक ही, शी, इट, दे। जैसे हम कहते हैं ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है। शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल, वो बहुत अच्छी लड़की है। एंड दे आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, वो बहुत अच्छे जो है वो स्टूडेंट्स है, तालिब इल्म है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत खूबसूरत है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो थर्ड पर्सन में आती हैं। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं जी
possessive pronoun की, as you people have learned about the possessive noun. Now we are going to discuss about the possessive pronoun, that what is the possessive pronoun. Possessive pronoun की जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले इसकी definition की तरफ जाते हैं, that what is the definition of possessive pronoun, which refers to the ownership. I already told you that what is the possession. Possession always shows the ऑनरशिप ऑफ अ पर्सन, किसी भी शख्स की जो है वो मिल्कियत को जाहिर करती है पोजेशन. सो हियर वी हैव डेफिनेशन. पोजेसिव प्रोनाउन रेफर्स टू ऑनरशिप, दैट इज समथिंग बिलोंगिंग टू समबडी, जो कि एक रिलेशन रखती है किसी एक चीज़ के साथ या किसी दूसरे शख्स के साथ. जैसे कि हम बात करते हैं हीज, हर्स, योर्स, देयर्स. यहाँ पे भी हम लोग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन की टाइप्स जो है वो हम बयान करेंगे. आई विल एक्सप्लेन इट इन द फॉर्म ऑफ दैट द फर्स्ट पर्सन इज कॉल्ड माइन. जैसे कि हम कहते हैं जी एग्जाम्पल में, दिस बुक इज़ माइन, ये मेरी किताब है. उसके बाद बात करते हैं जी सेकंड पर्सन की. यहाँ पे वो बता रहे हैं जी दिस बुक इज़ योर्स, ये तुम्हारी किताब है. थर्ड पर्सन की जब हम बात करते हैं, दिस बुक इज़ हर्स, ये उसकी किताब है. तो हम यहाँ पे फर्स्ट जो है, आपको पता है कि आई जो है वो मी में चेंज हो जाता है, देन वो माइन में चेंज हो जाता है. और सेकंड की जब हम बात करते हैं, यू, योर एंड योर्स. और थर्ड पर्सन जो है वो जो ही है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो हिम में चेंज हो जाएगा या हिम सेल्फ में चेंज हो जाएगा या फिर हिज में चेंज हो जाएगा. और जो शी है वो हर में या फिर हर्स में चेंज हो जाएगी जी. नेक्स्ट हम बात करते हैं जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल इन ग्रामर. ग्रामेटिकली जो है इसको बहुत देखा जाता है और ये थोड़ा सा समझने में हमें कॉम्प्लेक्सिटी आती है, लेकिन जब हमें इसकी समझ आ जाती है सो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर अस एंड इट विल बी वेरी ईजी टू कन्वे आवर मैसेजेस एंड टू कन्वे आवर लर्निंग स्किल्स टू द अदर्स. यहाँ पे वो बात करता है जी इट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ये किसको शो करता है कि जो सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है वो बैक हो जाता है. व्हेन रिफ्लेक्सिव नाउन इज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. रिफ्लेक्सिव नाउन जो है हमेशा सब्जेक्ट को वो टेंस में बैक कर देता है. कम टू द एग्जांपल ऑफ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. इसकी पहली बार एग्जांपल में हम देखते हैं, आई सा माई सेल्फ, मैंने अपने आप को देखा. आई सा, मैंने देखा. आई जो है सब्जेक्ट है, लेकिन जब इसने बैक होना है तो ये किस में आ जाएगा, माई सेल्फ में. आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने अपने आप को मिरर में देखा. ही हैज़ डन हिज वर्क हिमसेल्फ, उसने अपना काम मुकम्मल किया. हिमसेल्फ, खुद, उसने खुद अपना काम जो है वो मुकम्मल किया. तो ही जो है ये कैसे बैक हुआ है, हिमसेल्फ के तौर पर. नेक्स्ट वन हम बात करते हैं जी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इट इज़ मेनली यूज टू पॉइंट आउट पर्सन्स और थिंग. किसी भी पर्सन को या किसी भी चीज़ को हम लोग जब पॉइंट आउट करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना दैट के पॉइंट टू बी नोटेड, कुछ ऐसे नोट्स होते हैं, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिसको हमने क्या उसका नाम है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है, उसको हमने पॉइंट आउट करना होता है. सो जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं वी कैन से दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऑलवेज used to point out some persons or some things or some places. Like we have also something here which is in the form of note. पहला नोट जो है वो बात करता है जी दिस एंड दिस, ये चीज़ जो है, ये चीज़ें या फिर ये चीज़ विच इज़ ऑलवेज यूज्ड फॉर पर्सन्स और थिंग्स दैट आर नियर टू स्पीकर. बोलने वाले की जो पास चीज़ें मौजूद होंगी वो हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे, दिस और दीज का. जैसे हम बात करते हैं जी दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बैग, दिस इज़ माई पेंसिल, दिस इज़ माई ड्रेस. सो हम लोग जो हैं ये हमारे बहुत ज़्यादा करीब होती हैं और हम लोग स्पीकर हैं, एज अ बोलने वाले हैं, तो हम लोग दिस और दीज का जो है वो इंतखाब करते हैं एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर. नेक्स्ट वन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो किसकी बात करते हैं, दैट एंड दोज का, विच आर ऑलवेज यूज फॉर द पर्सन्स और थिंग दैट आर अवे फ्रॉम द स्पीकर. जो हमसे चीज़ें दूर होती हैं उसको हम दैट या दोस्त के साथ शो करते हैं. जैसे हम बात करते हैं जी दैट इज़ माई पेन. सेकंड एग्जांपल में आप देख रहे हैं दैट इज़ माई पेन, वो मेरा पेन है. और इसके अलावा हम बात करते हैं जी दोज बॉयज़, वो वाले जो लड़के हैं, वर वेरी नोटी, वो वाले जो लड़के थे बहुत ज़्यादा शरीर थे, यहाँ पे शरारती थे. सो ऑल दीज टर्म्स आर इंक्लूडेड एंड ऑल दीज टर्म्स यूज इन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट वन इज़ दैट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. कुछ हमारे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं या कुछ हमारे जो साथी हैं या कुछ हमारे जो कलीग्स हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं, उनकी अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है, उनकी अपनी अपनी एब्रीवेशन होती है. सो कुछ लोग जो हैं वो बोलते हैं जी इंट्रोगेटिव बोलते हैं, बट हियर
I just have shared something here that I would like to speak it in the form of interrogative pronoun. जब हम interrogative pronoun की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसका जो header है वो देखते हैं interrogative. जहाँ पे interrogative की बात आ गई वहाँ पे हमें पता चल जाना चाहिए कि किसकी बात कर रहा है, एक सवालिया फिक्रे की बात कर रहा है, एक क्वेश्चन मार्क की बात कर रहा है या फिर कोई क्वेश्चन कर रहा है. So here we have the definition of interrogative pronoun, that what is the interrogative of pronoun. Interrogative pronoun में बात करता है जी, it always uses like to ask any question. ये हमेशा इस्तेमाल होता है कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए by the others, दूसरों से, like what, whom, who and whose etc. उसके बाद बात करते हैं जी that what is the example of interrogative pronoun. The first one example of the interrogative pronoun is that which color do you want? Which color do you want? And the most important thing of the interrogative pronoun is that we have to put the question marks. क्वेश्चन मार्क जब तक हम लोग इसको पुट नहीं करते हमें समझ नहीं आती कि ये कौन सा सेंटेंस बोला जा रहा है. तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको शो कर रहा है दैट इट इज़ अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. सो विच जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जो कि WH फैमिली से ताल्लुक़ रखता है. WH फैमिली में हम लोग बहुत सी चीज़ों को देखते हैं जो कि क्वेश्चन मार्क के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, सवालिया फिक्रात के तौर पर इस्तेमाल होती हैं. नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इज दैट व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो या तुम क्या कर रही हो. यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही थी. व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगी. व्हाट विल हैव यू डन, तुम क्या कर चुके होगे. सो आगे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क का एडिशन करते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन का. दैट व्हाट इज द रेसिप्रोकल प्रोनाउन. इट ऑलवेज यूज टू कन्वे अ टू वे रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स. जब हम अल्फाज का इंतखाब करते हैं या जब हम कुछ ऐसे अल्फाज का इंतखाब करते हैं जिनका आपस में ताल्लुक़ होता है, जिनका आपस में रिलेशन होता है और उसके मैसेज को कन्वे करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग उसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन के तौर पर यूज़ करते हैं. द फर्स्ट वन एग्जाम्पल इज दैट दे हेल्प वन एंड अदर. हम लोग किसी को कन्वे कर रहे हैं मैसेज के वो एक दूसरे की मदद करते हैं. या फिर हम कह सकते हैं दोज पीपल हेल्प वन एंड अदर. वो वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं. सो हेयर वन एंड अदर प्रेजेंट, ये क्या शो कर रहे हैं, वन एंड अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन को. द सेकंड वन एग्जांपल इज दैट बेस्ट फ्रेंड्स शेयर एवरीथिंग. हमेशा जो अच्छे दोस्त होते हैं हर चीज़ को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का दुख बांटते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ. ईच अदर ऑलवेज शोज द रेसिप्रोकल प्रोनाउन. लास्ट वाला है जी इंडेफिनिट प्रोनाउंस. इंडेफिनिट प्रोनाउंस आल्सो शोज द पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट व्हिच इज आल्सो नोन एज इन द फॉर्म ऑफ उर्दू फेल हाल मुतलिक. जब हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउंस की बात करते हैं तो इसकी टर्म्स कुछ चेंज हो जाती हैं. The first one is definition of the indefinite pronoun is known as which is referred to person, place, thing in a more general way than a noun does. Noun से ज़्यादा जो है जनरल वे में कोई भी चीज़ हम शो कर रहे हैं बट नॉट एनी पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग. हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को या थिंग को हम लोग शो नहीं करते लेकिन हम लोग उस चीज़ को शो कर रहे हैं जो कि एक ऑर्डिनरी फॉर्म में है, जो कि एक इंडेफिनिट फॉर्म में है. तो इसको हम बोलते हैं जी इंडेफिनिट प्रोनाउंस को. लाइक हम कह सकते हैं ऑल, एनी, सम, नोन, नन. जी फर्स्ट वन एग्जाम्पल इज दैट वी डिड नॉट सी एनी ऑफ देम अगेन. हम में से या फिर उनमें से हमने किसी को नहीं देखा. सो हेयर एनी जो है ये शो कर रहा है जी इंडेफिनिट प्रोनाउन को. इज़ एनीवन देयर, क्या वहाँ पे कोई मौजूद है. तो एनीवन भी जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस को शो कर रहा है. सो इट इज़ वेरी इजी टू लर्न अबाउट इट. जी द लास्ट वन इज दैट इज डिटर्मिनेट. दैट व्हाट आर द डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्स इज आल्सो द टाइप ऑफ the parts of speech. Determiner is a word that determines the noun. Determiner जो हैं उनको कहते हैं जो कि हमेशा noun को show करते हैं. The most common determiners are a, an and the. अच्छा I want to say something here that a जो है, n जो है या फिर दा जो है इसको हम लोग determiners के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं और इसको हम दूसरा नाम देते हैं articles का. Like we have some example here about a, an and the, a box, an apple and the crowd. Last one हम बात करते हैं जी determiners, indefinite articles. I already told you that what are the articles which is in the form of a, an and the. सबसे पहले हम a की बात करते हैं. It is always used before noun. ये हमेशा noun से पहले लगता है. जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा है a boy, a lion and a leaf.
टू मेक प्रॉपर नाउन टू कॉमन नाउन्स। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, प्रॉपर नाउन्स को और कॉमन नाउन्स को, ठीक है। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं जी एन की। एन ऑलवेज कैन बी यूज्ड इन फ्रंट ऑफ द वर्ड शेयरिंग विद ए, ई, आई और यू विच इज़ ऑल्सो नोन एज वॉवल। वॉवल से पहले जो है इनको हम इस्तेमाल करते हैं एन को, जैसे कि हम बात करते हैं एन एप्पल, एन एलिफेंट। एलिफेंट जो है वो एक नाउन है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि नाउन से पहले जो है वो ये इस्तेमाल हो रहा है और इसके सामने इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नाउन के तौर पर, ऐसा आर्टिकल्स या डिटर्मिनर्स के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। द लास्ट वन इज दैट दा की बात करते हैं हम लोग। Here is the definition of the article of the. The is a definite article. ये भी एक article है जो कि definite है and it always used for a particular person or a thing. किसी एक ख़ास शख्स को या फिर किसी एक ख़ास चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग दा का यूज़ करते हैं। द फर्स्ट वन एग्जाम्पल इज़ दैट ही कैन प्ले द गेम। यहाँ पे दा जो है वो गेम जो है, गेम्स जो है वो बहुत ही ख़ास गेम्स भी होती हैं, जैसे कि हम क्रिकेट की बात करते हैं, हॉकी की बात करते हैं, टेनिस की बात करते हैं, एटसेट्रा। तो उसके बाद जो है वो उससे पहले जो हम कौन सा आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं, दा का। जी आई होप सो आपको जो है वो मेरे जो डियर फेलोज़ जो हैं उनको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी वॉल्यूम 1 की, दैट व्हाट आई हैव डिलीवर्ड इन द वॉल्यूम नंबर 1. So with the help of the volume number 1 we can concentrate and we can very easily conversate with the others. So English जो है वो सीखना कोई मुश्किल बात नहीं है, English सीखना बहुत आसान है if we have concentration, if we have a very good grip on the grammar and if we have a very good vocabulary in the grammar, so we can easily speak and we can easily learn about the English. So nice to share all these things. I will explain all other things which is related to the English grammar in my next volume. So thank you so much. आप सबका बहुत शुक्रिया मेरे साथ ये सब कुछ शेयर करने के लिए. So अल्लाह हाफिज़. Nice to talk.